گیمس مز دون دون ہند سالانہ مالک سنز LG منوج سنہن مالس تلمت دز جموں کشیر ہند پائیدار مستقبل ضامن نوجوان منوج سنہا ضلع پنچ کس منکوٹ سیکٹرس مز پاکستانی شہری سرحد یپور ینس مز کامیاب فوج طرف گرفتار پولیس طرف چھان بین کرنے پتہ گرفتار شخص پاکستانی فوجس حوالہ بھارتیہ جنتا پارٹی طرف جومس مز پریس کانفرنس سنز ووٹنگ عمل مز حصہ ننس پہ لوکن ہند کرنا آمت شکریہ ادا السلام علیکم ناظرین رات سن 9 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل ضلع پنچ کس منکوٹ سیکٹرس مز یہ زٕ دۄہ برونٛہہ پاکستانی شہری سرحد عبور کرت بھارتی فوج طرف گرفتار کرنے آمت تتہ پولیس طرف گرفتار شخص سن چھان بین کرنے پتہ آز چکند آباد وتہ کن گرفتار شخص پاکستانی فوجس حوالہ کرنا آمت یتھ دوران جموں کشمیر پولیسک ذمہ دار تو دشوین ملکن ہند فوجی ذمہ دار تہ موجود اس مزید تفصیلات فراہم کران سنی شرما پونچھ ضلع کے منکوٹ سیکٹر سے بھارتی سینا نے ایک پاکستانی ویکتی کو 2 دن پہلے حراست میں لیا ہے۔ آپ کو بتا دیں یہ ویکتی LOC کراس کر بھارتی سیما میں چلا آیا تھا اور آپ کو بتا دیں 2 دنوں تک لگاتار اس سے پوچھ تاچھ کی گئی اور پوچھ تاچھ میں اس کا نام منیر حسین بتایا جا رہا ہے جو کہ بٹل گاؤں کا رہنے والا ہے اور آج اسے پونچھ چکاندے باغ کے راستے اس کے وطن پاکستان واپس بھیج دیا گیا ہے۔ پونچھ سے گلستان نیوز کے لیے سنی شرما۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی طرف آز اوم پور بڈگام کس کیمپسس مز تقریب ہند سنز کرنا آمت یت مز LG منوج سنہا نفٹ کیو ذمہ دارو تو طالب علمو شرکت کر ات موقع پہ یہ LG منوج سنہن 2 دہن تام جاری روزن ولس سالانہ مالس دست تل تتہ تمو ات موقع پہ ونمت جموں کشیر ہندین نوجوانن مز بھرپور صلاحیت موجود تو یہ صلاحیت بروئی کار ان سٹھا ضروری یل زن تمو وون نفٹ سری نگر طرف نوجوانن اخ موقع فراہم کرنا آمت یت زن باصلاحیت نوجوانن برو پکنس مز آسانی سپدے LG منوج سنہن ات موقع پہ نوجوانن ہز ذکر کران ونمت نوجوان جموں کشیر ہند سو اخ طاقت یس زن امیک مستقبل تابناک بناونس مز اخ اہم رول ادا کرِ آنکڑوں کے حساب سے دیکھا جائے تو جموں کشمیر یوا چیتنا سے لبالب بھرا ہوا ہے اور لگ بھگ 65% یوا آبادی اس جموں کشمیر کا پنرنرمان میں جٹ سکتی ہے اور اس لیے ان 2 دنوں میں جتنے بھی ایونٹ آیوجت کیے جائیں گے وہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے ایک پریرک شکتی کا کام کریں گے اور امرت کال کے سپنوں کو ساکار کرنے کا سامرتھ پردان کرنے میں بھی سفل ہوں گی۔ ابھی ڈائریکٹر نفٹ جاوید صاحب نے کیمپس کی ایک رپورٹ پرستت کی۔ میں ان کا تથا فیکلٹی ممبرز اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کا بھی ابھینندن کرنا چاہوں گا۔ 2016 میں بھارت کے آدرنی پردھان منتری شریمان نریندر مودی جی نے نفٹ سری نگر کا تحفہ جموں کشمیر کو دیا تھا۔ ایک ٹیمپرری کیمپس میں ماتر 2 اکیڈمک پروگرام کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی تھی۔ پردھان منتری جی نے نفٹ کے اس ورلڈ کلاس کیمپس کے لیے 250 کروڑ روپے سے ادھک دھنراش اپلبدھ کرائی اور اس کے کارن نفٹ سری نگر اپنی یاترا نرنتر جاری رکھتے ہوئے فزیکل انفراسٹرکچر اور اکیڈمک پروگرامز میں انیک اپلبدھیاں آج نفٹ حاصل کر سکا ہے۔ کریٹیوٹی کی نرنترتا کو بنائے رکھتے ہوئے آپ کس پرکار اسے ایک نیا برانڈ نیم دے سکتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ اور پیکیجنگ کیسے کر سکتے ہیں، اسی پر اس پروڈکٹ کی سفلتا نربھر کرتی ہے اور اس لیے آج اس اوسر پر سری نگر نفٹ کے سبھی اسٹوڈنٹ سے میرا آگرہ ہوگا کہ جموں کشمیر کی انمول ہست شلپ پرمپرا کا آپ کو ادھین کرنا چاہیے۔ اس کے مطابق ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹ کو برانڈ پوزیشننگ اور برانڈ امیج نرمت کرنے میں
आप सहयोग करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में नए आइडियाज़ को समाहित करें आप, ताकि वह कंज्यूमर्स का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सके। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में हैंडलूम से जुड़े कलाकारों पर कोई न कोई दैवीय कृपा जरूर रही होगी, क्योंकि चाहे वो कारपेट का बुनकर हो या पश्मीना, सिल्क, नमदा, पेपर मासी, कॉपरवेयर से जुड़े हुए कारीगर हों, ये केवल एक प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल कलाकार के साथ साथ अगर आप देखें तो हर गांठ, हर डिजाइन के साथ एक नई कविता लिखते हैं, जो हर धागे से पेंटिंग भी बनाते रहते हैं। ये सच्चाई है कि जिस साधारण दिखने वाले धागे को वह सुंदरता के प्रतीक के रूप में बदलते हैं, ये भी उतना ही सच है कि वो अच्छे ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाते। और कलाकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह रंगों में तो जादू भर देता है, लेकिन वह उसे अच्छे दाम पर बेच नहीं पाता है। इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी प्रयत्न कर रहा है पिछले 4-5 वर्षों में कि उन्हें वैश्विक बाजार में स्थान मिले। 2023 में प्रशासन ने 32 नए क्राफ्ट्स को नोटिफाई किया और अनेक कदम इस दृष्टि से उठाए गए हैं। जीआई सर्टिफिकेशन हो, टेस्टिंग हो, लेबलिंग हो, ट्रेनिंग हो, ये सारे काम एक साथ किए जा रहे हैं। और एक बात मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन प्रयासों के कारण जहां 2021-22 में कुल एक्सपोर्ट 563 करोड़ रुपए था, वो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 1162 करोड़ रुपए हो गया है। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान रविंदर रैनान जम्मू कशीर तो खास कर वादी कशीर हिंदन लूकन हुंद शुक्रिया अदा करान वोन ज वादी मज यम फिर लूको तरफ बीजेपी किस हकस मज वोट दिन आमुत तो सह दह छुन दूर ये वादी मज बीजेपी पार्लियामेंट मेंबर ब्रोह कुन यी। अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, जिला रजौरी और पुंछ की आवाम का दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जो श्रीनगर पार्लियामेंट सीट है, जिसमें श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा आता है, मैं वहां की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वहां भी बड़े पैमाने पर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, खासकर नौजवान भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और वहीं नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें तो बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा और वहीं बड़गाम जिले का कुछ हिस्सा जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट पर आता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को वहां की आवाम ने, वहां के लोगों ने, खासकर नौजवानों ने बहुत सपोर्ट किया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो कारवां आगे बढ़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत बेस कश्मीर के अंदर आज बन रहा है, ये आने वाले सालों में और मजबूत होगा। और वो दिन भी हम यकीनन देखेंगे जब वादी कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जीतेंगे और एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी के वादी कश्मीर से जीतेंगे। वादी कशीर मज ये पतमन कैचन वरियन दौरान नौजवान तलब इलमों तरफ किताब तहरीर करनस कुन पन जोन फिर तत शुमाली कशीर मज आज 8वीं जमात हज तलबात साविया एजाज सज तहरीर करना आमच किताब हज रस्म रोनमई अंजाम दिन आम यथ दौरान स्कूल इंतजामिया तो तलब इलम मौजूद ये जन अत मौके पे वन आव तलब इलमन हज हौसला अफजाई तो तिहुंद हौसला बढ़ावन सठा जरूरी युद्ध जन तिमन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। मेरा नाम साविया एजाज है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं आई एम फ्रॉम ताहिरा खानम्स और मैं पटन में रहती हूँ।
मैंने एक बुकलेट लिखी है जिसका टाइटल है अ लाइफ ऑफ अ फेलियर पर्सन। ये एक फेलियर के बारे में स्टोरी है जो ज़िंदगी में नाकाम हुआ, लेकिन नाकाम होने के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। इतनी तरक्की हासिल की कि आज वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। तो बस तो मेरे लिए ये मैसेज है, मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ एज अ यंग सिस्टर। मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो फेलियर है, फेलियर का मतलब नाकाम निकलता है, मगर हर कोई नाकाम नहीं होता। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में फेल हुए हैं, एक्चुअली वही ज़िंदगी में आगे चल पाते हैं। जो ज़िंदगी में नाकामयाब होते हैं वही लोग आगे चल पाते हैं। सो बस इसका ये मतलब है। तो अगर मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँ तो फेलियर, आप सब मेहनत करें, सब मशक्क़त करें, हम सब मिलके मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे, कश्मीर का नाम आगे चलाएंगे और इस फेलियर के नाम को हटा देंगे, तो हमारा कश्मीर इतना आगे चलेगा कि हर कोई प्राउड से कहना चाहिए कि वाह, ये तो कश्मीरी है, कश्मीर कितना आगे है, सच में आप कश्मीर से बिलोंग करते हो, ऐसे सब गर्व से कहने चाहिए। और हम खुद अपना सीना चौड़ा करके ये कह पाने चाहिए कि वी आर अ कश्मीरी। वादी कशीर हंदिस रवायती भाईचारस ये विज विज जख वातनावनच कोशिश करना आई, ताहम वादी मज रोजन वालों लूकों तरफ प्रेथ विज रलित मिलित यम कोशिश नाकाम बनाना आमच। तम भाईचारच ताज़ मिसाल आज जनूबी कशीर हंद कुलगाम पे तम सात ब्रोह कुन आमच ये अकिस राजपूत सुंद इंतकाल सपुद। वन अड़दजन इलाकस मज आज सुबह ध्यान सिंह सुंद इंतकाल सपुदमुत, यथ दौरान तिहद आखिरी रसूमात अदा करनस मज मुकामी मुसलमानों बढ़ित बूलित हिस्स न्यू। ये जन मुकामी मुसलमानों तो दोमन फिरकन सत वाबस्त लूकों तरफ भाईचारुक अज़म दोहरावान वन आव ज्यादा भाईचारस रोजन तम ब्रोह कुन ते गोड़ बरान। तुझ पाव चेत यह आज गोडनुक वाक्य बल्कि कया मिसाल आज ताम ब्रोह कुन आमच, यमन मज सारी खुद ज्यादा तादाद जनूबी कशीर हंद जिले शुपियान, पुलवोम तो अनंतनागस सत वन। मानियो तो यम गई ये माइग्रेंट जा और इंशाल्लाह रूद बेहतरीन गामस, मतलब गसान और कह प्रॉब्लम मर कह कुन सात गामस हमेशा। और आज रात शाम गई अम्स डेथ और सोन सोरी गामिक बोई सारी रत बिहित। और जनाब ये रुत सलूक कर बेहतरीन सलूक कर। और ये इंतजाम सह कोर सोरे पाने क्या नफर ये कम नफर गिने चुने नफर ये लिहाजा पे सोरे पाने कर। तो बाकी शुक्रिया। से तहसील कुलगाम आड़ीजन देवसर से रहने वाले हैं हम। यहाँ राजपूत घर तकरीबन 10-15 है, हमेशा से यहाँ रह रहे हैं। तो ये 92-91 में यहाँ से भागे नहीं है, तो हम लोगों ने भी कोशिश की उनको भगाने, मतलब यहाँ से रोकने के लिए। तो ये ज़मींदार था, कल शाम से उसको थोड़ा सा दर्द हुआ, तो उसकी वजह से कोई कहता है हार्ट अटैक हुआ, कोई कहता है कुछ और। तो बाकी हमारे साथ अच्छी तरीके से रहते हैं और हम भी इनके साथ बहुत अच्छी तरीके से। बहुत यमी गामुक बाशिंद ये रोजन वोल तस्योमुत पढ़ोमुत वोथमुत ब्यूठमुत ये मैं खन बहुत बसान असली श्रीनगरस मज ज्यादा पहम। मे बोज सुबह मुन चाच गुजरो अमिस वन मुन सिंह। युथी मे बोज मे चो चाय मे छोल न बुत वोथुस तमी सात तो वोतुस योत ये वोतुस तो ये वो मे ये कहरामा हूँ मचोमुत क्या सैनिस इलाकस मज सैनिस गामस मज अगर हर दिल अजीज वोन कह सह मुन सिंह। अमिस मज यह जात पात कह यह बड़ तम सेकुलर माइंडुक इंसान। यह अगर वन खानदार यह बिल्कुल पेश पेश खानदरस मज या कुन जाए खर या अल्लाह ताला रशिन शार यह पेश पेश हमेशा क्या अमिस मज क्वालिटी यस मे आज तम कंसी मज वुचम। यह पान बिचोर बज अमिस पन बच्चे वच्चे कह अमिस कहें अमिस CA पेशेंट खानदारी वही कर कथ दपान मुन सिंह गो ये दुनिया अल्लाह ताला करनस सरक तो अज खानदारनी कुस पकनाय वन। मे दोप अतन मे कर वारियान अपील मे हो हम तो समतो मे वो इंदे रिश्तेदारन मे दोप तुम फर्ज बनन ये अमिस गस बसन वो मे गो यस खानदार ये दुनिया यह सोन फर्ज बनन। बहरहाल हेको यी वन हर दिल अजीज नेक सीरत इंसान ये सैनिस गामस मज दुनिया चोल दुनिया गो माइग्रेंट दुनिया गो हुत मगर ये
तहसील सोशल वेलफेयर अफसर सुरनकोट सिंह तरफ इलाकन लूकन वन आमुत मैरिज असिस्टेंस प्रोग्रामस तहत गसन तिम लूक फॉर्म जमा करें AAY के जुमरस मज आसन यल जन तिमो वोन जे अकिस ज़ाब्तस तहत गरीब कोरन मदद करने तो लूकन पज ज़ाब्तस तहत पन फॉर्म जमा करें युत जन तिमन कुन किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। महकमा सोशल वेलफेयर की जानब से जो 50,000 रुपया प्रायोरिटी हाउस होल्डर और AAY बच्चों को जो दिया जाता है, उसमें मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रहेगी कि बहुत सारे लोगों ने जो क्या किया है, फॉर्म जिन बच्चों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है उनके फॉर्म भी भरे हुए हैं। इससे पूरे डिपार्टमेंट को तजब्ज़ में इन्होंने डाल दिया है और डिपार्टमेंट के पास इतना बड़ा अमला नहीं है कि जो वो ग्रास रूट लेवल पर जाके इंक्वायरी करे, वेरिफिकेशन करे। तो मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी, वो इलाके के जितने भी ज़िम्मेदार हजरात हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, ये बाकी जितने भी BDC हैं, हमारे एक्स BDC हैं, DDC साहिबान हैं, ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा हैं, उनसे मेरी सबसे गुजारिश है कि आप अपने लोगों को जहाँ जहाँ आपके लोग हैं उनको अवेयर करें कि ये स्कीम उन बच्चियों के लिए है जो प्रायोरिटी हाउस होल्डर में और AAY में आती हैं और उन्हीं बच्चियों का फॉर्म भरना है जिनकी शादी की डेट तय है। ये कोई 31 मार्च को कोई स्कीम ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें हमने देखा सुरनकोट हो, चाहे मंडी हो, चाहे वो हवेली हो या मेंढर हो, तो इसमें क्या किया है, जिनकी अभी शादी की डेट डिसाइड भी नहीं हुई है उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है और उससे डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी दुश्वारी आ रही है वेरिफिकेशन करने में और बहुत सारे केसेस लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं और रिजेक्ट इस बना पे हो रहे हैं कि अभी तक लोगों की डेट शादी की जो है वो डिसाइड नहीं हुई है। तो शादी की डेट डिसाइड ना होने की वजह ये है कि लोगों को पता है कि पता नहीं स्कीम बंद हो जाएगी, हम इसका लाभ और फ़ायदा इसका जल्दी उठा लें। तो इसलिए मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि ये कोई टाइम बाउंड स्कीम नहीं है कि ये 10 दिन की स्कीम है या महीने की स्कीम है या साल की स्कीम है। नाज़रीन कोशिश खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ।